Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's lecture, we are going to understand some of the most important topics, or we can say we are going to take a small revision on the topic which can be useful for all SY students. So let's start with the video. So first, a revision topic is the term micro and macroeconomics. So the term micro and macroeconomics first time coined out by Ragnar Frisch. Afterward, the term microeconomics propounded by Alfred Marshall and the term macroeconomics propounded by J.M. Keynes. Next is the term macroeconomics derived from Greek word which means large or aggregate. So when we study about entire economy and when we study about like a aggregate and total variable, like example national income, total demand, total supply, so that is a macro study. And micro study means when we study about individual behavior, for example individual firm price, the price of individual product, so that is called microeconomics. Then there is a no ending and beginning point in a circulation flow. See, circulation flow already we have learned. Circulation flow means money flow from one point to other point, or we can say when money flow from one sector to other sector, that is called circulation flow. So in circulation flow there is no ending and no beginning. Next is, now we will talk about some of the topic that is based on national income, or we can say circulation flow. See, circulation flow का अभी मैंने बताया कि there is no ending point and beginning point in a circulation flow, because circulation flow means when money flow from one sector to other sector. So we will take a small revision on a concept circulation flow. First of all, circulation flow means what? So when national income generated in economy and how it flow from one sector to other economy, that is called circulation flow. For example, when money flow from firm to individual, individual to firm, then individual to government in form of income taxes, then firm to government in form of corporate taxes. Same when money flow from government to public in form of public expenditure. तो देखो आपने देखा है कि पहले पैसा फ्लो हो रहा था इंडिविजुअल से फर्म की तरफ, फिर फर्म से इंडिविजुअल की तरफ, फिर गवर्नमेंट के पास जाता है पैसा टैक्स के फॉर्म में, वापस मार्केट में आता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस. Same here when we import, money flow from our country to other nation. When we export, money flow from other country to our nation. So that is called circulation flow in very simple terms. Then in circulation flow, there are some terms. See, student, I already made one video on circulation flow. You can go through it. And if you want video on all circulation flow, then you can just put me a message in comment box. Next, in circulation flow, there are some, like outer layer, or we can say there are some flows. So what we call that flows. So in circulation flow, एक flow होता है real flow. Real flow means when there is a flow of a factor of production. I will just draw it in short. See, in circulation flow, we have learned like this. Here there is a household and here there is a firm. Here there is a household and here there is a firm. So here first firm will supply all the factor of, first firm will supply all the factor of production to firm. कौन से factor? That is a land, then we can say labor, land, labor, capital, etc. So here first that flow took place from household to firm. Same here when firm will produce goods and services, तो वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में निकालता है. तो यहाँ पर देखो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही है फर्म से लेके मार्केट में. तो ये जो फ्लो होता है जहाँ पर चीजें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रही है, और वी कैन से द फैक्टर फ्लोइंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर फैक्टर, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो. सो रियल फ्लो का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज. मनी फ्लो का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर. अगेन वी विल अंडरस्टैंड. As you can see, this is household. Household is the owner of all the factor of production. Then we can see just for one minute. Household is the owner of all the factor of production and firm is the user of all the factor of production. See, ये जो flow होता है यहाँ पर flow होता है factor of production का household से firm की तरफ, और यहाँ पर flow होता है goods and services का firm से household की तरफ. So that is called real flow. But यहाँ पर आपको पता रहेगा कि when household is going to flow all the factor of production to firm, so then what firm will do? So firm इसके behalf में
हाउस होल्ड को पैसे देगा, दैट इज इन फॉर्म ऑफ रेंट, इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन अ फॉर्म ऑफ वी कैन से वेजेस। तो यहाँ पर वापस मनी फ्लो हुआ फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। सेम हियर, जब हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल करेगा तो उसे परचेज कौन करेगा? सॉरी, जब फर्म मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेगा, सेल करेगा, तो उसे परचेज कौन करेगा? हाउस होल्ड। तो इसमें वापस क्या हो रहा है? पैसा हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है। तो जो आउटर वाला फ्लो है, जहां पर मनी का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। एंड इनर पार्ट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रहा है, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। Next is injection. Injection means when there is a addition of money in the market. See, injection means, for example, if I am going to spend money in a market, तो वो पैसा मार्केट में जा रहा है. When government making expenditure in a market, तो वो पैसा मार्केट में जा रहा है. When we export commodity in international market, so that time money flow from other country to our nation. तो ये सब क्या है? Injection. Injection means when money flowing toward the market. And leakages means जब मार्केट में से पैसा बाहर आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस, तो हमारा पैसा मार्केट के बदले गवर्नमेंट के पास जा रहा है. व्हेन वी इंपोर्ट कमोडिटी, सो वी आर पेइंग मनी टू इंटरनेशनल मार्केट, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है. सेम ईयर व्हेन वी सेव, तो सेविंग में क्या हो रहा है? मार्केट में पैसा नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड लीकेजेस. नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो का एक थोड़ा सा हम इंट्रो देखेंगे कि एग्जैक्टली सर्कुलर फ्लो क्या है. नाउ इन डिटेल स्टडी, इन डिटेल आई विल नॉट एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्मॉल डिविजन लेक्चर विच आई एम कंडक्टिंग. सी सर्कुलेशन फ्लो वर्क इन अ टू वे. फर्स्ट इज क्लोज इकोनॉमी, second is open economy. Closed economy we can easily understand, no import and no export. Open economy, the economy which deal with entire world. So closed economy divide into two sector and three sector. Two sector also divide into two part. Two sector without saving, two sector with saving. See, two sector without saving means यहाँ पर दो sector रहेंगे, household and firm. Household will sell all the factor of production to firm, तो firm उसे पैसे देगा. Afterward, with the help of all the factor of production, firm is going to produce goods and services. वो मार्केट में सेल करेगा. तो जो हाउस होल्ड ने पैसे कमाए थे, वो पूरे के पूरे पैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में लगा देगा. तो समझो हाउस होल्ड ने फर्म से 100 रुपीज कमाए, वही 100 रुपीज पूरा वो हाउस होल्ड को दे देगा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में. तो यहाँ पर कोई सेविंग नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं. दैट इज कॉल्ड टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग. नेक्स्ट इज टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग का मतलब होता है, सपोज के आई एम अ हाउस होल्ड, सो आई सोल्ड माई लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू फर्म. तो फर्म ने मुझे इसके बिहाफ में पैसे दिए. फॉर एग्जाम्पल, फर्म हैज गिवन मी ओनली 100 रुपीज, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेंड एंटायर 100 रुपीज ऑन मार्केट. उस 100 रुपीज में से मैं 20 रुपीज बैंक में सेव करूंगी और 80 रुपीज को मार्केट में यूज करूंगी. तो दैट इज कॉल्ड टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग. सी, अजम्पशन सेम रहेगा, ओनली एक लास्ट का अजम्पशन आपका चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट आपका आता है थ्री सेक्टर मॉडल. थ्री सेक्टर मॉडल में नाउ देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट. सो थ्री सेक्टर मॉडल में देयर इज अ थ्री सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व होती है? इन फॉर्म ऑफ इम्पोजिंग टैक्सेस, इन फॉर्म ऑफ डूइंग एक्सपेंसेस. नेक्स्ट आपका आता है ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी का एक सेक्टर दैट इज कॉल्ड फोर सेक्टर मॉडल. फोर सेक्टर मॉडल में चार सेक्टर हो गए, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड. नेक्स्ट इज there are some part which we have done. ओपन इकोनॉमी क्या होती है? द इकोनॉमी विच डील विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मीन जहां पर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेशन, तो टू सेक्टर मॉडल इन क्लोज इकोनॉमी का इक्वेशन क्या है? y इक्वल c प्लस आई, मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. देन थ्री सेक्टर मॉडल का इक्वेशन क्या है? दैट इज c प्लस आई प्लस g, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. देन ओपन इकोनॉमी का इक्वेशन क्या है? c प्लस आई प्लस जी प्लस nx. वी रिमेम्बर वन थिंग, वी नेवर इंक्लूड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, वी ओनली इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट. नेक्स्ट इज, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सर्कुलर फ्लो में दो पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड लीकेजेस एंड इंजेक्शन. तो लीकेजेस मनी, लीकेजेस का मतलब होता है कि व्हाट आर द सोर्सेज जो मार्केट से पैसा बाहर निकाल देते हैं. सो लीकेजेस आपका है सेविंग. सी, व्हेन यू आर गोइंग टू सेव योर मनी, ऑटोमेटिकली पैसा मार्केट में फ्लो तो करेगा नहीं. सेम हियर, व्हेन वी आर गोइंग टू, व्हेन गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्पोज द टैक्सेस, तभी भी पैसा मार्केट में जाएगा नहीं. नेक्स्ट इज इम्पोर्ट. जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब
फिर से क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। जब मार्केट में से पैसा बाहर जाता है दैट इज कॉल्ड लीकेजेस। सो सेविंग, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट, दीज आर द लीकेजेस। इंजेक्शन कौन से, जब मार्केट में पैसा जाता है। इन्वेस्टमेंट, अगर मेरी सेविंग से फर्म जो है, और वी कैन से वट एवर मनी आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, बैंक उसे लोन देगा किसे, फर्म को, और वो पैसा फर्म क्या करेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि पैसा मार्केट में जा रहा है, सो दैट इज अ इंजेक्शन। पब्लिक एक्सपेंसेस मींस व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मनी फॉर वेलफेयर ऑफ अ पब्लिक, सो दैट इज आल्सो इंजेक्शन। एक्सपोर्ट, व्हेन वी एक्सपोर्ट, सो दैट टाइम मनी फ्लो फ्रॉम अदर कंट्री टू आवर कंट्री, तो एक्सपोर्ट भी क्या हो गया, इंजेक्शन। नेक्स्ट इज व्हेन गवर्नमेंट बोरोविंग रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सी, अगर गवर्नमेंट डेफिशिट में चल रही, व्हेन एक्सपेंसेस are greater than revenue, so that time automatically government suffering from deficit, and when government suffering from deficit, so that time what government used to do, they borrow money. So when government borrow money, so it started to reduce investment. How? अगर समझो गवर्नमेंट आपको ऐसा बोलेगी कि यू आर, इफ यू आर गोइंग टू गिव मी अ मनी, अगर गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा और उसके बदले में आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी, देन ऑटोमेटिकली आप अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे, तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। तो जितना आपका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता रहेगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट कब करती है गवर्नमेंट, वेन एवर इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई इन द मार्केट, और वी कैन से जब गवर्नमेंट डेफिशिट में, देन ऑटोमेटिकली वो पैसा मार्केट से बोरो करती है। तो जब पैसा मार्केट से बोरो होता है तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, उसे कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम क्या है। सो नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और एक साल में जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने कमाया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, वो पूरा का पूरा पैसा आता है नेशनल इनकम में। फिर आपका आता है जीडीपी, दैट इज ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना तो कैसे निकालेंगे, जीडीपी में से हम अपना क्या माइनस करेंगे, द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और वेरी सिंपली जो भी हमारा जीडीपी है उसमें से हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हुआ, मतलब हमारे एनवायरमेंट को कितना हार्म हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हमने कितना कॉस्ट लगाया है, वो माइनस कर देगी, तो हमें हमारा जीडीपी, इट मीन दैट ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा। ट्रेड साइकिल क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ वेव लाइक मूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी fall down and goes up, that is called trade cycle. So when there is a ups and down in economic activity, that is called trade cycle. There are main 4 phases of trade cycle: recovery, prosperity, recession and depression. See, जो रिसेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है, तो जो रिसेशन होता है वो पिक पॉइंट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट वेट, आई विल शो यू। समझो ये हमारा ट्रेड साइकिल है, ठीक है, दिस इज आर ट्रेड साइकिल। यहाँ पर आपका है रिकवरी, ये है प्रॉस्पेरिटी, ये आपका पिक पॉइंट है, ये आपका रिसेशन है, ये आपका डिप्रेशन है, ये ट्रफ पॉइंट है, ठीक है। तो जब इकोनॉमी रिकवर होता है तो हम प्रॉस्पेरिटी में जाते हैं। अगर प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यू हुआ तो हम पिक पॉइंट पे रहेंगे, और अगर पिक पॉइंट पे हमने प्रॉपर बैलेंस नहीं रखा, देन ऑटोमेटिकली वी विल एंटर इनटू रिसेशन। तो रिसेशन कब स्टार्ट होता है, पिक पॉइंट के बाद। ये अपना पिक पॉइंट है। पिक पॉइंट कौन है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जस्ट फॉर 1 मिनट स्टूडेंट, या नेक्स्ट इज, so the recession phase of trade cycle begin at peak point. Peak point क्या है, peak point is a part of prosperity. Peak point is also known as the highest point of trade cycle. Then trough is the lowest point of a depression. Trough जो है वो depression का part है। During recession and depression, public expenditure क्या होगा, increase होगा, because automatic already there is a no money in the market. During prosperity and boom period, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो कम होगा, बिकॉज ऑलरेडी मनी सप्लाई इज वेरी हाई। देन इफ रिसेशन नॉट कंट्रोल, देन वी कैन एंटर इनटू डिप्रेशन। इफ देयर इज अ रिसेशन इन अ कंट्री कंटिन्यूसली एंड वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट रिसेशन, देन ऑटोमेटिकली हम डिप्रेशन में एंटर कर सकते हैं। देन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी,
Velocity of circulation money means average number of time when money flow from one hand to other hand. मतलब एक करेंसी मार्केट में कितनी बार घूम रही, that is called velocity of circulation of money. So the velocity of circulation of money is very high in a boom period or prosperity period, because inflation में boom period में velocity of money ज्यादा होता है क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा expenses करते हैं. नेक्स्ट चीज, केन्स का जो थियरी वो डिमांड ओरिएंटेड है. केन्स ऑलवेज पुट प्रेशर और वी कैन से एम्फासिस ऑन इफेक्टिव डिमांड. इफेक्टिव डिमांड कैसे मिलता है? इफेक्टिव डिमांड वी कैन गेट इजीली व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. So intersection of aggregate demand and aggregate supply determine equilibrium level of income and employment, that is called effective demand. The point where demand and supply both can get equilibrium to each other, that point is known as effective demand. कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखना है, that is called APS. What is the full form of APS? Average propensity to consume. तो कैसे निकाल इसको? The ratio of consumption upon income. You can see the formula. Next is MPC, that is a marginal propensity to consume. How to get marginal propensity to consume? Change in a consumption upon change in Y. Then consumption function refers to functional relation between total income and total consumption. It means that as our income increase, our consumption also increase. But income increase greater than increase in consumption. जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट जितना फास्ट इनकम इंक्रीज होता है उतना फास्ट कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है. नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, फर्स्ट टाइम गिवन बाय R.F. Kahan. Okay, the spelling mistake is there, that is R.F. Kahan. The concept of multiplier first time given by R.F. Kahan in 1931. Then जब R.F. Kahan ने मल्टीप्लायर का कंसेप्ट दिया था तो उन्होंने बताया था कि when there is a change in investment, when there is a like increase in investment, it will affect on employment. मतलब जब जैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होता है. सो दैट R.F. Kahan के एक जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर. आफ्टरवर्ड J.M. Keynes in 1936 he refined the concept of R.F. Kahan, that is एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर पे कुछ चेंजेस किए और फिर उसे वापस प्रेजेंट किया. नाउ इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर. सी R.F. Kahan बोलता है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट देयर विल बी चेंज इन एम्प्लॉयमेंट. सो दैट इज हिज मल्टीप्लायर कंसेप्ट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर. और केन्स बोलता है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ इन्वेस्टमेंट देयर इज अ चेंज इन इनकम. सो दैट हिज मल्टीप्लायर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर. Next is, there are some points which we should keep in mind. Investment multiplier is a ratio of a final change in income to initial change in investment. So the formula they have given, that is K. Multiplier indicated by K. So K is a function of delta Y upon delta I, means change in income due to change in investment. Multiplier को डिटरमाइन करना है MPC से, तो फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस MPC. ओके, MPC जो है वो इक्वल है 1 माइनस MPS. MPS means marginal propensity to save and MPC means marginal propensity to consume. So MPS is equal to 1 minus MPC. So इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K equal 1 upon MPS instead of 1 minus MPC. Next is, investment will be in a equilibrium when MEC became equal to given current rate of interest. ओके, मार्जिनल एफिशिएंसी, ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ये जो कंसेप्ट है इट इज गिवन बाय J.M. Keynes. ओके स्टूडेंट्स, so please go to the video. If you like it, then like, share, comment and subscribe. Thank you so much. God bless you.